Hello, my dear students. This is Harshit Gupta. Today I am explaining the remaining part of acids, bases and salts. तो इसके पार्ट ए में मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर दी थी। मैंने इंडिकेटर्स बताए थे, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। उसके बाद फिर मैंने आपको एसिड्स बताए थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेसिस। स्टार्ट करते हैं। What are bases? According to Arrhenius concept, a base, when dissolved in water, it dissociates to give OH negative, means hydroxide ions. So generally we can say that if a substance, when dissolved in water, and it decomposes to give hydroxide ion, then such compounds are known as bases. ठीक है, this is the definition of bases. Now examples of bases are sodium hydroxide, it is also known as caustic soda. It has chemical formula NaOH. Calcium hydroxide, it has chemical formula CaOH ka whole twice. That is also known as fused lime or lime water. Potassium hydroxide, it is also known as caustic potash, and it has chemical formula KOH. So all these substances are bases because when they dissolve in water, they decomposes to give hydroxide ion. As you can see, sodium hydroxide, when it dissolves in water, it gives hydroxide ion and sodium ion. So you can check when NaOH dissolve in water, then it dissociates into Na plus and OH minus ions. So the substances which gives OH negative ions are known as bases. तो इस बात को आप याद रखना कि जितने भी सब्सटेंस OH नेगेटिव आयंस देंगे वो बेसिस होंगे। जैसे इसमें OH है, इसमें OH है, इसमें OH है, तो ये डिसोसिएट होकर OH नेगेटिव आयन देगा, तो ये क्या हो जाएंगे? सब बेसिस। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, आप लोगों को मैं एक कंपाउंड दिखा रहा हूँ, CH3COOH। बहुत से लोगों के मन में यहाँ पर सवाल उठ जाता है, it also contain OH ion. It may be base, but remain this thing in your mind: when it dissociates, when it dissolves in water, then it dissociates into acetate CH3COO minus and H plus. और ये H plus आयन देता है, तो ये एक एसिड होता है, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। इसको मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो आपसे ऐसी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस: bases have bitter taste. These are soapy to touch. अगर आप इनको टच करोगे तो सोपी सोपी फील होगा। आप NaOH को टच करो, KOH को टच करो। कास्टिक सोडा आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, NaOH। आप मार्केट में किसी भी जो जहाँ पर ये किराने का सामान मिलता है, वहाँ जाके पता करोगे कास्टिक सोडा, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। आप 2 रुपए का कास्टिक सोडा ले लो, बहुत है। घर पे सोप भी बना सकते हो, मैं आपको बताऊंगा आगे सोप कैसे बनता है घर पे, मैंने बनाया है। तो अभी फिलहाल मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि आप कास्टिक सोडा लो, उसमें उसको थोड़ा से पाउडर में डिजोल्व करो। डिजोल्व करोगे तो आपको सोपी फील होगा, आपको ऐसा लगेगा हम सोप को टच कर रहे हैं। वरना हम जब केमिस्ट्री लैब में चलेंगे आप लोगों को लेकर, तब हम आप लोगों को इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे। आगे देखो, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। याद होगा मैंने आपको बताया था BRB, basis turns red litmus into blue. They conduct, actually from the basic solution we can conduct electricity. So base conduct electricity in solution because they dissociates into the ions, and ions contain charge due to which they can conduct electricity. And when bases dissolve in water, means in the aqueous solution,
they release OH negative ion, means hydroxide ion, due to which these are known as base. ठीक है. Now the types of bases. What are the types of bases? Bases can be divided into two types: water soluble, water insoluble. What are water soluble bases? वाटर soluble bases की बात कर ले रहे हैं. Generally, the hydroxides of alkali and alkaline earth metals are soluble in water. These are also known as alkalis. तो इस बात को याद रखना. The hydroxides of alkali and alkaline earth metals. What are alkali metals? Alkali metals आप लोगों को पता है कौन कौन सी होती है. First, the elements of first group are known as alkali metals except hydrogen. कौन कौन सी होती है इसमें? लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रेंसियम. तो याद होगा मैंने आपको इसको ट्रिक बताई थी, हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री. इस तरह से आप याद रख सकते हो इसको. बहुत से लोग हेलिना की रब से फरियाद से याद करते हैं. यहाँ पे हाइड्रोजन एक गैस है, इसको छोड़ दिया जाए तो ये सारी की सारी एल्कली मेटल्स होती हैं. बिकॉज they are basic in nature, that is why these are known as alkali metals. And the water soluble bases are also known as alkalis. तो इस बात को आप याद रखना. फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड. हाँ, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स रह गई. एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप आर नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. कौन कौन से होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. तो आपको इसको भी याद रखने का एक ट्रिक है. क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. अब भैया बाप के पास पैसा तो राजी, अब आपके पास पैसा नहीं है तो रोएगा. तो आप कर दो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए. जिसके पेरेंट्स दिला दे, राजी हो जाए, वो राजी याद कर ले. ठीक. तो यहाँ पर मैंने बात की कि आपके सेकंड यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होती हैं, और इन सभी के आपके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो आपके वाटर में सॉल्युबल होते हैं. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, etc. These are known as alkalis. Alkalis is considered as strong base. All the alkalis considered as strong base. तो इस बात याद रखना, alkali जो है उन्हें हम एक strong base की तरह consider करते हैं. दूसरे टाइप की बात करते हैं, वाटर insoluble bases. Water insoluble bases. The metallic oxides are generally insoluble in water. जो metallic oxides होते हैं जनरली insoluble होते हैं वाटर में. These are considered as weak bases. Actually the metallic oxides of D block elements, इस बात को भी याद रखना, D block elements ये आपके जनरली वाटर में insoluble होते हैं. एक्सेप्ट एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. मेटलिक ऑक्साइड्स एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर एल्कली मेटल का ऑक्साइड है Na2O सोडियम ऑक्साइड, तो ये तो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तुरंत और NaOH बना लेगा, 2NaOH. यहाँ पर अगर Na2O की H2O से रिएक्शन कराएंगे तो तुरंत रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे 2NaOH बन जाएगा. दो सोडियम, दो हाइड्रोजन, दो O मिलकर 2NaOH बना लेंगे. तो इस बात को याद रखना कि ये मेटेलिक ऑक्साइड्स जनरली किसके होंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के. फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड, इट इज आल्सो नोन एज कॉपरिक ऑक्साइड. ठीक है. इट हैज केमिकल फॉर्मूला CuO. मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट हैज केमिकल फॉर्मूला MgO. जिंक ऑक्साइड, इट हैज केमिकल फॉर्मूला ZnO, etc. All these oxides are water insoluble. ठीक है. Now let's come on the chemical properties of bases. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थी वो तो हमने टेस्ट और ये सब चीज़ बता दी थी. अब हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की. केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी बेसिस की? रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स,
सबसे पहले हम मेटल्स के साथ बेस की रिएक्शन करा ले रहे हैं। व्हेन एल्कली मीन्स बेस, कौन से बेस होंगे ये एल्कली? जो वाटर सॉल्युबल है, जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। व्हेन एल्कली रिएक्ट्स विद मेटल, it produces salt and hydrogen gas. So alkali react with metal to form salt and hydrogen. जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो पहला एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड gives hydrogen gas and sodium zincate when react with zinc metal. तो sodium hydroxide means alkali react with metal zinc, it produces salt. यहाँ पर जो salt बनना है वो है सोडियम जिंकेट, ये रहा सोडियम जिंकेट। और साथ ही साथ कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस। तो आप चेक कर सकते हो इस रिएक्शन से, ये हमें सारी चीज बता देगी कि व्हेन एल्कली रिएक्ट विद मेटल, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। एक और एग्जांपल देखो, सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम मेटल। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम मेटल, सोडियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्ट तो रिएक्शन नहीं करते, इनके एक्वस सॉल्यूशन ही जनरली रिएक्ट करते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन में ही रिएक्टिव होते हैं, वरना तो ये सॉलिड है, सॉलिड थोड़ी ना रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो आपका जब एक्वस सॉल्यूशन की हम एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराएंगे तो NaOH और वाटर, ये दोनों मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाते हैं, NaAlO2। इट्स नेम इज सोडियम एल्यूमिनेट। और साथ ही साथ कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। तो फिर से देखो यहाँ पर क्या हुआ, एल्कली रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो ये पहली रिएक्शन होगा हमारी, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। अब आप किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन कराओ, मैंने जिंक, एल्यूमिनियम, कोई और भी मेटल होती तब भी यही होता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप रिएक्शन ऑफ बेसिस विद ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। जब हम बेस की रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पर देखो, मैं पहली बात यहीं पे ये चीज लिखी हुई है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड is a non-metallic oxide, non-metal oxide. When carbon dioxide is dissolved in water, it produces carbonic acid. तो अगर हम बात कर रहे हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है एसिडिक नेचर में है, और एसिडिक नेचर के, तो आपको पता है बेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मींस एसिड। व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड, both neutralizes each other and resulting respective salt and water. So base when react with non-metallic oxide, then they will produce salt and water. तो यहाँ पर देखो एक एग्जांपल है, NaOH, sodium hydroxide, give sodium carbonate and water when it react with carbon dioxide. So when sodium hydroxide react with carbon dioxide, then it gives sodium carbonate and water. सिंपल सी रिएक्शन है, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताई है। यू कैन बैलेंस दिस रिएक्शन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। मैं बार बार उस चीज़ को नहीं बताऊंगा कि हम कैसे बैलेंस करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करो, इम्प्रूव करो, डाउट हो आप मुझसे डिस्कस करो। वैसे डिफिकल्ट नहीं होता है, जैसे मैं यहाँ पर एक चलो बता ही दे रहा हूँ, NaOH when it react with CO2, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, इतना हमें दिया है थ्योरी में। और जब हमने इनकी रिएक्शन कराई तो क्या बनना है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और साथ ही साथ क्या बनना है? वाटर। वाटर का फॉर्मूला H2O। अब आप चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं सोडियम है? दो, इधर दो, इधर दो है, इधर एक है, तो हमें इधर कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? दो से। जब हमने दो से मल्टीप्लाई किया, अब देखो हमारे पास
सोडियम बैलेंस होगा, जो बैलेंस होगा उन्हें मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। सोडियम बैलेंस, एक कार्बन था, एक कार्बन है। ऑक्सीजन देखो बैलेंस है क्या, दो ऑक्सीजन ये है और दो ये है, चार। इधर देखो तीन ये है और एक ये है, H2O में चार, ऑक्सीजन भी बैलेंस। हाइड्रोजन चेक करो, दो से मल्टीप्लाई हो रही है हाइड्रोजन की, दो हाइड्रोजन ये है, दो ये है। यानी अब सारी चीजें बैलेंस हो गई, यानी 2NaOH react with, sorry, 2NaOH react with CO2 to form Na2CO3 and H2O। ये रिएक्शन ये लिखी हुई है, आप बैलेंस कर सकते हो हिट एंड ट्रायल मेथड से। Similarly, calcium hydroxide gives calcium carbonate and water when it react with carbon dioxide। तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तब कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनता है। The third one reaction is neutralization reaction। It is very important reaction also। तो मैं इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है। An acid neutralizes a base when they react with each other। तो आपको पता है एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन, तो जब ये केमिकली रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और न्यूट्रलाइज करके क्या बनाते हैं, रेस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर। तो एन एसिड neutralizes a base when they react with each other and respective salt and water are formed। तो एसिड बेस के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ना तो एसिड बचेगा ना ही बेस बचेगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। ना एसिडिक करेक्टर होगा सब्सटेंस में ना बेसिक करेक्टर, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। तो जब इन दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया तब ऐसी रिएक्शन आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी। So thus we can say that when 1 mole of acid neutralize 1 mole of base, then such reactions are known as neutralization reactions। In neutralization reaction, when an acid react with base, the hydrogen ion of acid combines with hydroxide ion of base। As you know that कि acid जो है वो आपका हाइड्रोजन आयन देंगे और बेस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। ये दोनों आयन आपके केमिकली कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, वाटर। और बचे हुए रेडिकल्स जो हैं, जो रिमेनिंग रेडिकल्स हैं, तो वो आपके आपस में कंबाइन होकर सॉल्ट बना लेते हैं। तो मैंने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कंबाइन, सॉरी, in neutralization reaction an acid react with base, when an acid react with base, the hydrogen ion of acid combines with the hydroxide ion of base and form water। As these ions combine together to form water, instead of remaining free, thus both neutralizes each other। The enthalpy change for this reaction, the enthalpy change for this reaction for a strong acid and for a strong base is -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ये बात याद रखना, जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों एक दूसरे के साथ जब रिएक्शन करेंगे तब हमेशा इतनी ही एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को, इस हीट को हम कहते हैं हीट और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्योंकि यहाँ न्यूट्रल हो रहा है तो जितनी भी हीट या एनर्जी रिलीज हो रही है वो आपकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, जितनी भी हीट रिलीज होगी वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगी। और कितनी रिलीज होगी, 13.7 किलो कैलोरी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस रिएक्शन को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड अ बेस, जो आपका ये बेस है, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक्स इनटू सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन।
ये आपका डिसोसिएट होगा किसमें, सोडियम आयन यानी Na+ और हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH-, याद रखना Na+ OH-, ठीक है। आयन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्रेक्स इनटू हाइड्रोजन एंड आयन एंड क्लोराइड आयन। तो ये आपका जो HCl है ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन इनमें डिसोसिएट्स होगा। तो ये हमें चारों आयन मिल गए। अब चारों आयन जो मिल गए, ये चारों आयन में से क्या होगा, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वाटर। मींस जो इसका हाइड्रोजन आयन है ये वाला, और जो इसका हाइड्रोक्साइड आयन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, वाटर। आप देख सकते हो हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, वाटर। वाइल सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट। जबकि जो सोडियम और क्लोराइड आयन है ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, मैंने रिएक्शन कराई NaOH और HCl की, तो हमें पता है NaOH डिसोसिएट होगा किसमें, OH- Na+ में। HCl डिसोसिएट होगा किसमें, Cl- और H+। ये मैंने ऊपर लिख दिया है थोड़ा सा छोटा करके, यहाँ पे रह गया था तो मैंने ऊपर अलग से लिख दिया H+। अब ये चारों आयन जो बने इसमें से OH- H+ के संग क्या बना लेगा, वाटर। और जब वाटर बन जाएगा तो आपके बचे हुए Na+ और Cl- कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। तो ये एक तरह से वर्किंग हो गई कि ये कैसे होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अगला देखो, सिमिलरली कैल्शियम क्लोराइड is formed along with water when hydrochloric acid react with calcium hydroxide। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करती है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ये सब क्या है, एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी उसे। अगला देखो एग्जाम, अगले टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड ऑलरेडी बेसिक होते हैं नेचर में, और एसिड की रिएक्शन रही, ये भी एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा सॉल्ट एंड वाटर ही बनता है। अब मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, thus when acid react with metallic oxide then both neutralize each other. In this reaction the respective salt and water are formed। ये आपको पता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड इज अ मेटल, calcium is a metal, thus calcium oxide is a metallic oxide which is basic in nature. When an acid such as hydrochloric acid react with calcium oxide, it neutralizes, uh, neutralization reaction take place and calcium chloride along with water are formed। तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड जब HCl से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोरीन के साथ क्या निकाल देगा, CaCl2, और इसका O इन दो H के साथ क्या निकाल देगा, H2O। तो ये रिएक्शन भी आपकी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी एक तरह से। यहाँ पर मैंने आपके वीक एसिड्स को लिया, ये आपके वीक बेस को, बाकी मैंने हाइड्रोक्साइड्स की रिएक्शन कराई थी, ऑक्साइड्स की रिएक्शन है, मेटेलिक ऑक्साइड की, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक और एग्जांपल देख लो। सिमिलरली when sulfuric acid react with zinc oxide then zinc sulfate and water are formed। इस बार जिंक ऑक्साइड की हम रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करा रहे हैं, तो क्या होगा, जिंक सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट बना लेगा और ऑक्सीजन 2H के साथ H2O, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कॉमन इन ऑल बेसिस। सभी बेसिस में क्या चीज कॉमन होती है, अ बेस डिसोसिएट्स हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर which is responsible for the basic behavior of a compound। when a base dissociates when a base dissolve in water then it dissociates to give hydroxide ion। Therefore we can say that the basic character of base depends upon the hydroxide ion। तो यहाँ पर एग्जांपल्स है, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolve in water dissociates to give हाइड्रोक्साइड आयन। सिमिलरली अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, ये भी आपका हाइड्रोक्साइड आयन देगा।
तो ये सभी मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अब जैसे आप कहो कि जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड जो है जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या करेगा, ZnOH का होल ट्वाइस बना लेगा। और अब तो OH आयन है इसमें, डिसोसिएट होके क्या दे देगा, OH नेगेटिव आयन। इसलिए आप याद रखना कि जिंक ऑक्साइड जो है वो भी, आप वरना आप ऐसे कह सकते हो कि जिंक ऑक्साइड जो है ये Zn+2 और O-2 में डिसोसिएट होता है। O-2 वाटर के साथ रिएक्शन करके दो OH माइनस बना लेता है। तो यहाँ पर भी आपके OH नेगेटिव आयन मिलेंगे, OH नेगेटिव आयन मिलेंगे, तो ये भी बेसिक करेक्टर शो करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। आपको पता है कोई भी एसिड हो या बेस हो, मैंने इस चीज को लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन in an acid and hydroxide ion in an base per unit volume shows the concentration of an acid or base। किसी भी एसिड की कंसंट्रेशन उसके H आयन पर डिपेंड करेगी। जितने ज्यादा H प्लस आयन होंगे उतना ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा, जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयन होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, उतना ज्यादा बेसिक करेक्टर होगा, उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन बेस की होगी। अब अगर हम बात करें इनके डाइल्यूशन की, तो डाइल्यूशन हम कब कैसे करेंगे, डाइल्यूशन का मतलब है हम इनमें वाटर डिसॉल्व करें, इनकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करें। तो भाई मिक्सिंग ऑफ एसिड टू वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। अब वाटर मिक्स करते जाएंगे तो वॉल्यूम तो डिक्रीज हो ही जाएगा। आप वाटर कंटिन्यूसली बढ़ाते आ रहे हो भैया, पहले सपोज दैट 100 ml में 100 आयंस थे, अब आपने वाटर बढ़ा दिया, आपने 1 लीटर कर दिया तो 1000 ml में 100 आयंस हैं। आपने और बढ़ा दिया, आपने 1000 की बजाय 1 मिलियन ml कर दिया, 1 मिलियन ml वाटर में अब भी आयंस कितने रहे, 100। क्योंकि आयंस थोड़ी ना चेंज हो रहे हैं, H प्लस आयन वो तो नहीं रहे ना। तो कंसंट्रेशन जो है वो हाइड्रोजन आयन की पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है जब हम वाटर मिक्स करते हैं। ठीक है, आगे देखो। सिमिलरली बाय एडिशन बेस टू वाटर the concentration of hydroxide ion per unit volume decreases. This process of addition of acid or base to water is called dilution, and acid or base is called diluted। मीन्स अगर हमने उसको वाटर में ऐड कर दिया, वाटर डिजॉल्व वाटर में, वाटर उसको वाटर में, एसिड को वाटर में हमने मिला दिया, तो आपका जो एसिड है वो डाइल्यूटेड एसिड कहलाएगा। सेम बेस के केस में है, आपके ऐसे बेसिस डाइल्यूटेड बेसिस कहलाएंगे। ठीक है। एक और बात जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इज एक्सोथर्मिक। मींस इनमें क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। Thus, the thus acid or base is always added to water, and water is never added to acid or base। इस बात को आप हमेशा याद रखना। हमेशा एसिड या बेस को ही हम वाटर में ऐड करेंगे, वाटर को सीधे सीधे एसिड और बेस में ऐड नहीं करते हैं। इफ वाटर इज added to concentrated acid or base and a lot of heat is generated which may cause splashing out of acid or base and may cause severe damage as concentrated acid or base are highly corrosive। तो आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। मैंने लास्ट टाइम पे ही बताया था ये कि आप जिस कंटेनर में ले रहे हो, जिस आपने सपोज दैट कोई बीकर लिया, बीकर में एसिड लिया, एसिड में आपने वाटर ऐड किया, तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने के कारण वो बीकर ब्लास्ट हो सकता है। तो इसलिए आप हमेशा याद रखो, हम वाटर में एसिड को डाइल्यूट करने के लिए एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अगर हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ की बात करें तो किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ जो है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, उसके एच आयन या ओ एच आयन। एसिड की स्ट्रेंथ H प्लस आयन पे, बेस की OH नेगेटिव आयन पर। तो यहाँ पर देखो, एसिड इन विच complete dissociation of hydrogen ion take place are called strong acid। Similarly, bases in which complete dissociation of hydroxide ion take place are called strong bases। तो यहाँ पर याद रखना है बेटा, complete dissociation का मतलब क्या है। जैसे आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए एसिड के, तो 100 मॉलिक्यूल्स जो लिए वो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स आपके डिसोसिएट हो जाए। जैसे 100 HCl है,
तो 100H+ और 100Cl- बन जाए, 100Cl- बन जाए। अब लेकिन अगर 100 में से सपोज डेट 40 डिसोसिएट हुए, तो ऐसे आपके एसिड वीक एसिड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए कंप्लीट आयनाइजेशन टेक प्लेस होगा, कंप्लीट आयनाइजेशन होगा, जरूरी है, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो। द स्ट्रेंथ ऑफ any acid depends upon the concentration of H plus ion, while the strength of base depends upon the concentration of OH negative ion. The strength of any acid or base is determined with the help of pH value. pH value. pH is stand for power of hydronium ion or hydrogen ion. pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन। ये शायद मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग याद रखना पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। pH value and pH scale. The pH scale was invented by Sorensen. Sorensen discovered the pH scale. He invented the pH scale. It is the scale which contain 0 to 14 numbers of pH value. तो याद रखना है ये एक स्केल है, इस स्केल में 0 से लेके 14 तक वैल्यू होती है, बीच में 7 होता है। 7 जहाँ पर होगा वहाँ पर न्यूट्रल होता है सब्सटेंस, इधर जाएंगे तो एसिडिक और इधर जाएंगे तो बेसिक। तो याद रखना अगर 0 से 7 है वैल्यू तो एसिडिक, और 7 से 14 है तो बेसिक, और 7 है तो न्यूट्रल। तो अभी मैं इस चीज़ को भी बात करूंगा, अभी यहाँ पर इसको आगे भी और डिस्कस किया है मैंने। pH value is defined as the negative logarithm of the hydrogen ion concentration is called pH value। तो pH का फॉर्मूला होगा pH इज इक्वल टू माइनस log base 10 concentration of H ion। इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी आगे पढ़ सकते हैं, वो आगे की बात है, अभी हम देखते हैं। पहले यहाँ पर देखो pH की अभी मैंने बात की थी, pH वैल्यू। इफ द pH वैल्यू इज एग्जैक्ट 7 then the substance are neutral। if the pH value is less than 7 then the substance are acidic in nature। if the pH value is greater than 7 then the substance are basic in nature or alkaline in nature। the acidic strength increases on decreasing pH value। जितना ज्यादा कम वैल्यू होगी उतना ज्यादा एसिडिक होगा। आप चेक कर सकते हो वेरी एसिडिक, जबकि यहाँ पे स्लाइटली एसिडिक होगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ज्यादा कम नहीं हुई है। सिमिलरली द बेसिक करेक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ज्यादा बेसिक करेक्टर होगा। ठीक है, जैसे हमने पीएच निकाला ऐसे हम पीओएच भी निकाल सकते हैं। पीओएच इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस लॉग, इस बार कंसंट्रेशन ओएच नेगेटिव आयन की हो जाएगी। ठीक है, बेस में 10 ही रहेगा, ये बात याद रखना। और अगर हम बात कर रहे हैं पीएच और पीओएच, तो पीएच और पीओएच इन दोनों का सम हमेशा 14 होगा। अगर किसी की पीएच वैल्यू 2 है तो पीओएच वैल्यू 12 होगी, क्योंकि उसमें बेसिक करेक्टर ज्यादा होगा, एसिडिक करेक्टर कम होगा। सॉरी, एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा तो बेसिक करेक्टर कम होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, पीएच वैल्यू अगर 2 है तो पीओएच 12 हो जाएगा। इन दोनों का सम 14 होता है, क्योंकि ये आपकी जो पीएच स्केल है ये एसिडिक और बेसिक करेक्टर को ही बताता है। अगर या इसमें सभी सब्सटेंस का जो टोटल पीएच और पीओएच का सम है वो हमेशा 14 रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं पीएच के बेस पर। आप चेक कर सकते हो। 7 न्यूट्रल प्योर वाटर। प्योर वाटर कंटेन H2O। actually the formula of water is H2O। it contain H plus and OH minus both in equal proportion। और दोनों का अगर प्रोपोर्शन इक्वल है तो ना तो ये एसिडिक होगा ना ही बेसिक, इसलिए प्योर वाटर जो है वो हमेशा कैसा होता है, न्यूट्रल। अब अगर हम इसके अलावा बात करें तो देखो 7 से कम आपका जाएंगे तो एसिडिक आ जाता है। मिल्क, इसकी पीएच वैल्यू अप्रोक्सीमेट 6 के आसपास होती है।
ब्लैक कॉफ़ी की 5 के आसपास, टोमेटो जूस की 4 के आसपास, 3 के आसपास एप्पल जूस, लेमन जूस आपका इसमें सिट्रिक एसिड होता है, इसकी 2 के आसपास होती है, एसिडिक होता है। गैस्ट्रिक जूस कौन सा होता है, इसमें आपका कौन सा एसिड होता है, HCl, तो इसकी पीएच वैल्यू 1 के आसपास होती है। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े तो एग आपका बेसिक नेचर का होता है, इसकी पीएच वैल्यू 8 होती है। बेकिंग सोडा 9 के आसपास होती है, ये भी बेसिक करेक्टर का होता है। हैंड सोप ये बेसिक होते हैं, अल्कलाइन नेचर के होते हैं, मैटर इनकी पीएच वैल्यू 10 के आसपास होती है। अमोनिया सॉल्यूशन की 11 के आसपास, ब्लीच की 12 के आसपास, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एल्कलीज जो है वो 13 और 14 के आसपास। तो ये सभी सब्सटेंसेस हैं जिनकी पीएच वैल्यू कभी कभी पूछी जाती है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिख भी दी है, देखो ब्लड की पीएच वैल्यू जो होती है 7.36 से 7.42 के बीच होती है। सलाइवा सलाइवा की कितनी होती है, 6.5 से 7.5। यूरिन की 5.5 से 7.5। गैस्ट्रिक जूस अभी मैंने बताई थी 1 के आसपास होती है, 1 से 2 के बीच। कॉफी की अभी मैंने बताई थी 4 के आसपास होती है, 4.5 से 5.5। बियर 4 से 5 होती है पीएच वैल्यू। टोमेटो जूस अभी मैंने बताया था 4 से 5 के बीच होगा, 4 से 4.4 होती है। वाइन जो होती है उसकी 2.8 से 3.8 होती है पीएच वैल्यू, वाइन ज़्यादा एसिडिक होती है। लेमन जूस की 2.2 से 2.4, तो अभी मैंने बताया था 2 के आसपास होती है। विनेगर 2.5 से 3.5। HCl की जीरो, अगर वन है, मोलैरिटी 1 है उसकी, जीरो का मतलब बहुत ज़्यादा बेस्ट एसिडिक, सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा ये। ऐसे ही NaOH आपका, इसकी पीएच वैल्यू 14 होती है, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा जब 1 मोलैरिटी है। ये बात याद रखना है, हमें मोलैरिटी 1 लेनी है। NH4OH, इसकी जो पीएच वैल्यू है 11.6। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की 10.5। और बैटरी एसिड जो होता है जिसमें 40% सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसकी पीएच वैल्यू 0.5 होती है। तो बैटरी जो आपके इन्वर्टर की बैटरीज होती है उसमें H2SO4 पड़ता है, याद रखना बैटरी एसिड आपका H2SO4 होता है, जिसमें 0.5 पीएच वैल्यू होती है। और आप लोग जो बैटरी में अलग से एडिशनल वाटर ऐड करते हो, जो आप कैन लाते हो 5 लीटर वाली, वो आपका हाईली डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में, हाईली डाइल्यूटेड होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। आगे के नेक्स्ट टर्न पे मैं सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, सॉरी सॉल्यूशंस कहाँ से आ गए, हम बेस, एसिड बेस और सॉल्ट्स रह गए हैं। तो नेक्स्ट टर्न पे मैं आपके सॉल्ट्स डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।